So, yeah. So today we'll take a brief class on data handling. So this is chapter 9 of NCERT 6 class 6 in class 6 book. It's a chapter 9. It's in chapter 9. Okay. So so first we'll start as usual with the terminologies, which is data, as we can see. So this data means collection of numbers, okay, gathered to give some sort of information. Some information मतलब कुछ information देने के लिए जो collection हम लोग करते numbers के, उसको data बोला जाता है. And now sometimes क्या होता है, हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि डेटा फिर क्या है, मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का क्या डिफरेंस है. इफ इट्स सम इंफॉर्मेशन देन व्हाई वी हैव टू टर्म इट एज डेटा, व्हाई कांट वी कॉल इट एज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, बिकॉज इट्स एज वेल एज लाइक बेसिकली इंफॉर्मेशन ही है, but it's in a form of data basically. So now with like difference between data and information. ठीक है. सो डेटा जैसे हम लोगों ने अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेटा रेफर करता है रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को, या फिर सेट ऑफ नंबर्स को, या फिर सेट को. ठीक है. और यहाँ पे व्हेन द प्रॉपर, अभी अगर व्हेन जब कभी भी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हो जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हो जाता है, एंड यू कैन कॉल इट एज ऑर्गेनाइजिंग एज वेल. जब प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाता है या फिर जब प्रॉपरली स्ट्रक्चर हो जाता है वही डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, ये जब होता है व्हेन इट टेक्स प्लेस, then this particular thing is known as information. तब आप लोगों को proper मिल रहा है information. So it's the entire like kind of proper structuring and organization of data. When this takes place, it's information. This particular phenomenon is known as information. This is what happens. So now next terminology was handling, right? So let's see what do we mean by handling. Now ये जो डेटा हम लोगों के पास आ गया है, so the collection of number is what we have got to ensure. So handling is basically a process. एक process है जो ensure करता है, क्या ensure करता है कि जो research data है हमारे पास वो store हो रहा है properly. So when we are handling that particular data, we will ensure that it's properly stored, archived, या फिर आर्काइव्ड हो रहा है, और डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर अगर कोई नेसेसरी डेटा नहीं है तो वी कैन डिस्पोज इट ऑफ एज वेल. एंड ये एंटायर थिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर. सो एक सेफ एंड सिक्योर मैकेनिज्म यूज होता है इसको हैंडल करने के लिए. सो नाउ वी कैन से इट एज, so basically it includes the development of procedures to manage data that is handled. It could be electronically as well as non-electronically. So electronically भी काफी सारे data handle होते हैं, like in cloud and stuff, and as well as this mathematical form will be of course non-electronic method. तो यहाँ पे बस हम लोग calculate करेंगे वो data जो भी हम लोगों को मिलेगा. So data handling in all, data handling पूरा अगर हम लोग एक कंसिडर करते तो इट्स बेसिकली गैदरिंग, recording, presenting
information. क्यों information? क्योंकि information of course we understood that it's a proper structure and organized data. So वही मतलब gather करके record करके present करेंगे information, मतलब जो भी structured data होगा वो हम लोग present कर रहे हैं, तो information present कर रहे हैं in a way that helps others, ताकि वो help करे दूसरे को, मतलब सबको basically, to read and write, to read or watch, to read / fetch, watch, कुछ भी आप बोल सकते हो information को, info को. अभी it can be in a format of charts के format में हो सकता है, ठीक है. एक बहुत ही एक्सीलेंट, जैसे हम लोग अभी लैपटॉप या फिर जो भी सिस्टम डिवाइस यूज कर रहे हैं, वी जनरली यूज लाइक सबने यूज करा होगा एट सम पॉइंट और द अदर इन योर लाइफ, एक्सेल शीट्स. सो दोज आर लाइक चार्ट फॉर्मेट, अगर आप समझ पा रहे हो. रोज रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. सो दोज आर लाइक चार्ट फॉर्मेट. और वही एक्सेल शीट में और एक पार्ट आ जाता है जहां पे यू कैन डू द सेम थिंग इन फॉर्म ऑफ graphs, ठीक है, bar graph, pie charts and all. So you can do it as well. So these graphs and these things are sometimes called, sometimes these category of mathematics is also termed as statistics. So we'll not go deep into this particular thing, but then abhi bas like sabko like just mention kar rahe. Okay, so now what happens is we also ये वाले एरिया पे ही हम लोग ये जो स्टैटिस्टिक्स वाले एरिया है जहां पे हम लोगों के पास बहुत सारे डेटा है चार्ट्स के फॉर्मेट में या ग्राफ्स के फॉर्मेट में. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज टर्म थिंग्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है. ये हम लोग यूज करते हैं डेटा को कंपेयर करने के लिए, या फिर बेसिकली टेक आउट एज वेल. लाइक डेटा को सिर्फ कंपैरिजन नहीं, बस डेटा को फाइंड करने के लिए भी यूज होता है, टू टेक इट आउट एज वेल. सो टू टेक आउट डेटा एज वेल, लाइक ढूंढने के लिए भी. ओके, सो देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड टैली. वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि टैली क्या होता है. पर टैली में एक छोटा सा चीज मैं बता दे रही हूँ कि टैली इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ ग्राफिकल, लाइक एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है, representation of data, and it also falls under the statistics category. And what happens is it is beneficial for basically एक डेटा को स्कैन कर देता है कि कितना क्या क्या कौन सा कमोडिटी या फिर कौन सा चीज कितने लाइक क्वांटिटी में प्रेजेंट है. सो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्राफ टेबल में जनरली वर्टिकल लाइंस का यूज होता है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस का यूज होता है. एंड देन और जो फिफ्थ नंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे होते हैं तब जो फिफ्थ नंबर होता है वो हम लोग डायगोनल लाइंस, लाइक प्रीवियस 4 नंबर होते हैं, प्रीवियस 4 नंबर्स पे ये फिफ्थ नंबर को डायगोनली लाइक लाइन को क्रॉस करके हम लोग प्रेजेंट करते हैं. सो विल सी हाउ इट हैपेंस. आई एम जस्ट मेंशनिंग मतलब जो भी टू से थियरी पोर्शन है, आई एम जस्ट सेइंग इट, ठीक है. नाउ in this particular data handling, there could be, as you can understand, data can be of 2 types, or you can say like data handling, डेटा को हम लोग हैंडल कर सकते हैं. और ये जो डेटा का फॉर्मेट होता है, दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कोर्स. सो वन कुड बी क्वालिटेटिव डेटा. आई होप आई एम ऑडिबल. क्वालिटेटिव डेटा and another is quantitative data. Again, if anyone else like किसी को अगर कुछ पता हो extra, you can always raise your hand so that you can include your so that we can include your knowledge in this particular class as well. So ठीक है. So now
let's see, like in quantitative data what happens, it gives of course आपका एक numerical information है और quality numerical information होगा इसमें, information and qualitative of course review descriptive, मतलब describe करेगा कोई एक particular चीज को, descriptive information रहेगा, information, anything, it can be anything in this particular like area. Now quantitative, discrete और continuous, ठीक है, मतलब not continuous, continuous ऐसे भी बोल सकते हो, continuous भी हो सकता है डेटा और discrete भी हो सकता है. So this is how it goes. I hope अभी तक सबको क्लियर है. So now हम लोगों ने एक चीज पढ़ा, टैली. टैली का और एक पार्ट आता है, मतलब टैली जब हम लोग देखेंगे, टैली ग्राफ और मतलब टैली शीट एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी, एक टर्म आता है कि कितना बार, कितना फ्रीक्वेंटली दैट इज अपियरिंग, मतलब वो नंबर, कोई एक पर्टिकुलर नंबर कितना फ्रीक्वेंटली अपियर हो रहा है. सो वंस वी डू इट विल अंडरस्टैंड दैट. बट टैली इज बेसिकली अ सिंपल वे. एक चीज यहाँ टैली पे मैं बताना भूल गई कि टैली इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ रिकॉर्डिंग एज वेल एंड ऑफ और काउंटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब काउंटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप एवरी डे यू लाइक एवरी डे कोई कांस्टेंट नहीं है पर आप एप्पल खाते ही हो. In 7 days of a week, you do intake apple as your staple fruit. Like एक particular fruit के हिसाब से आप apple खाते हो. It doesn't matter कि एक दिन आप एक apple लिए और next day you are taking 4 or 3 or whatever it is. So that particular apple जितना बार frequently आपके diet में appear हो रहा है, so frequency is like जितना बार, मतलब जितना repetitive time it's appearing or it's presenting in front of you. So that's फ्रीक्वेंसी का बेसिक आइडिया वही है, ठीक है. मतलब ईच ऑकरेंस, मतलब हर एक टाइम पे कितना बार ऑकर कर रहे हैं, ठीक है. सो नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस. आई होप इतना ही था. या सो नाउ लेट्स मूव टू दिस थिंग, एनसीईआरटी. so in NCERT first if you see there's this term called recording data. So हम लोगों ने देखा कि डेटा हैंडलिंग में पहले चीज तो आ जाता है कि डेटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा. पहले एक डेटा आपको मिल गया और उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा. सो बेसिकली इफ फॉर एग्जांपल ABCD 4 EF, these are all like students, are there in a class and they A ने बनाना लिया, apple, it could be orange, ठीक है, it could be guava, it could be again banana, it could be anything, strawberry, ठीक है, it could be anything. So basically ये information अगर आपको दिया जाता है और आप इसको proper एक format में लिख ले रहे हो, basically एक segregate करके you're just mentioning it in this particular area. तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि banana is appearing twice in a student's like tiffin. ये पकड़ लीजिए आप टिफिन में, ठीक है. तो टिफिन में twice this banana is appearing. So ऐसे करके you can also take it till 26 students if you want to do it. So अगर आपको वैसे ही अगर repetitive way में जितना बार, for example apple, F के बाद तो G ने guava लिया, H ने भी guava लिया, ठीक है. Once you put it in a particular recorded format, तो in that case you'll be able to understand कि guava कितना बार आपका appear हो रहा है, and similar way में how many fruits or how many the data that is given to you. So this is basically, it would be a qualitative data which is a descriptive fruit format में है, ठीक है, जो कि आपको वो भी तो एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर ही आ जा रहा है, राइट, एंड यू आर रिकॉर्डिंग इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्वांटिटी वाइज
कितने बार अपीयर हो रहा है, so कितना बार ऑकर हो रहा है. So this is how it goes. I hope it's clear. Okay, now let's move to organizing part of it. ठीक है. Now let's move to organizing part of it. ठीक है, organizing data. So data को organize करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास information है तो वो information को आप number wise या फिर quantity wise you are just segregating that particular thing. ठीक है. For example, this banana and these fruits were there, right? Banana, guava, and all of these things. So orange was there, and this apple was there. First, say banana appeared in a particular student's, like, agar एक क्लास में there are 30 students, तो 8 बच्चों के डाइट में बनाना मिला. ऑरेंज आपका मिला 3 बच्चों के डाइट में. देन एप्पल मिला फिर से 5 people. Then again guava, guava मिला आपका 4 बच्चों के डाइट पे. So you can of course you can organize it in this format as well. So what happens in this is आप एक नंबर के हिसाब से, मतलब आप एक पर्टिकुलर जो क्वालिटेटिव डेटा था उसको आप एक क्वांटिटी के हिसाब से उसको मेजर कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर फर्दर यूजेज. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. सो नाउ अभी आपका आ जाता है टैली का जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानने वाले थे. सो फर्स्ट से अ टीचर, जो मिड डे मील सर्विसेज होते हैं, यहाँ पे चॉइस दिया गया बच्चों को कि राइस ले सकते हैं, ओनली राइस they can take only chapati, both. ठीक है. यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स अपने अपने में चूज करा. फॉर एग्जाम्पल ओनली में 17 पीपल चूज करा, चपाटी में 13 पीपल चोज, एंड बोथ में आपका 20 पीपल चोज. ठीक है. Okay, so now this thing we can write it in tally format, like tally sheet कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे of course this choice वाला एक category रहेगा जहाँ पे you are putting in rice, chapati and both. Then there will be tally marks, like tally marking, basically tally marks, and then the number of students, which is again the frequency. समझ आ, मतलब it's very evident कि यही आपका फ्रीक्वेंसी है. मतलब कितना बार कितना फ्रीक्वेंटली राइस अपीयर करेगा एक बच्चे के प्लेट में, कितना फ्रीक्वेंटली चपाटी अपीयर करेगा और कितना फ्रीक्वेंटली बोथ अपीयर करेगा, which is what it was given as 17, 13 and 20. So now how to represent it? First what happens here is अगर 17 है, जैसे जब टैली का हम लोग we were kind of theoretically we were understanding what tally is. So I said कि पहले 4 जो होता है वो vertically we just vertical line से representation होता है, और जो 5th वाला होता है that is what we put as diagonal. So अगर 17 है तो 17 is basically, पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट. ये आप ये भूल जाइए, पहले आप 17 को आप लिख सकते हो कि there will be around 10 and 7. ओके, पहले ये सेग्रीगेट कर देते हैं. 5 1 2 3 1 2 3 4 5. ठीक है, 7 हो गया, 10 हो गया, and this now 7. So this is how you can represent it in general. Now इसको आप ये भी कर सकते हो कि first 1 2 3 4 5, ये पहले 5, फिर आपका फिर से 5 अपीयर हुआ, फिर से 5 is there, and then 2 is remaining. So now this can be written as, this first 5 can be written as 1 2 3 4, and the जो 5 वाला जो मतलब 5 का जो vertical line होता है उसको हम लोग diagonally represent करते हैं. So next again
it will go it will like ऐसे ही similar way में move करता है, ठीक है. So this is how it goes. And then 2. Of course 2 में तो 5 बार appear नहीं हो रहा है, तो last का जो 2 वो remaining रह जाता है. Similar way में 13 भी अगर कर रहे हो आप, तो 5 and 3, correct. And then 20 में आपका this will be 5 times ही आपका representation होगा. So this is how it moves. So this is what the frequency is, like the frequency of choice that is given to this particular students, and the number of times it's appearing, occurrence, which is what is known as occurrence as well. Okay. So, and this is the format in which tally is written as. So now moving forward with tally sheets are very easy, like बहुत ही easily समझ आ जाता है, and if there's any difficulty you can mention it in the chat box. Now there's another thing called pictograph. हम लोगों ने देखा कि 2 फॉर्मेट होता है, एक चार्ट फॉर्मेट और एक ग्राफ फॉर्मेट होता है, करेक्ट. सो यू कैन कॉल दिस ग्राफ फॉर्मेट जो है, और काफी टाइम अगर पिक्टोग्राफ हम लोग फिर से एक चार्ट में भी यूज कर सकते हैं. एज सच कोई नहीं है कि चार्ट में नहीं यूज कर सकते, वी कैन ऑल्सो यूज इट देयर एज वेल. सो पिक्टोग्राफ मतलब पिक्टो, दिस पिक्चर, लाइक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आप लिख सकते हो कि पिक्चर representation. So it's related to picture. इतना याद रखना is enough. And then to know about this particular definition अगर जानना है, तो it represents data through pictures, of course, through pictures of objects. Different objects का pictures हम लोग करते हैं. And now what happens is it helps answer. अभी help इसका क्या स्पेशलिटी है ये पर्टिकुलर पिक्टोग्राफ में, कि एक ग्लांस पे ही हम लोगों को डेटा मिल जाता है. जस्ट बाय वन ग्लांस, एक वन लुक में, बेसिकली ग्लांस इज जस्ट लाइक क्विक लुक, बेसिकली glimpse or a glance on the particular data, we can get the information, जो भी information हम लोगों को चाहिए डेटा के बारे में, ठीक है. इंफॉर्मेशन चाहिए फिर से, अगर रो 1 में एक दुकान, एक पर्टिकुलर शॉप है, रो 1, रो 2 एंड रो 3 है, तो रो 1 में आपका AC, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 ACs, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है. देन रो 2 में आपका फ्रिजेस है, 4 फ्रिज है, F फॉर रेफ्रिजरेटर, ओके, फ्रिजेस. एंड दिस थर्ड में आपका फिर से कोई भी टीवी है, ठीक है. आपका अगेन देयर आर 5 TVs. So at a glance you can understand that, of course, through those pictures and through the graph, like pictographic representation in those on those 3 rows, you can understand कि कितने कितने अमाउंट में कौन कौन से सब्सटेंसेस है. So this is how it becomes very easy. So now there's this very easy sum. We can, like, easy sum नहीं, मतलब बहुत ही easy सा एक वो है, like question है, which is the color of, for example, वही इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक सर्वे निकला, और यहाँ पे they are trying to find out the color of refrigerators or fridges preferred by people, ठीक है, people, और ये एक चार्ट उन लोगों ने बनाया है, और ब्लू कलर का ये वो है, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, और क्या कलर होता है, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट, ठीक है. ये हो गया. अभी इंसानों में इन्होंने सर्वे पे एक ब्लू पे फिर से देयर आर दीज 3, ग्रीन में 2, रेड में 1
white पे there are 4 people. So with pictographic representation, they can like to find out the number of, for example, number 1 में ये कि number of people prefer blue, वो हो जाएगा आपका 3, and then second number of like how many people like red color fridges, that will be 1. Okay, similar way में आपका कुछ भी हो सकता है, watches could be any particular substance, any particular चीज आप जो भी ढूंढना चाहते हो. Okay, then there's like अभी picture representation में एक part आता है जहाँ पे like drawing a pictograph. So drawing a pictograph is basically जितना closest like drawing of pictograph is substance जो दिया गया है उसका जितना closest form में आप ले जा सकते हो. तो for example इधर people के बारे में बोला गया था, like you had to kind of deduce how many people were there. So it's not मैंडेटरी कि आप एकदम प्रॉपर आर्टिस्टिक वे में इंसान ड्रॉ करो, पर एकदम एक समझने लायक बनाना, इट्स ओके, of the particular substance that you are, of the particular thing or the object that you are trying to find the data about. Okay, so now let's move on to bar graphs. So bar graph, now let's move to bar graph. बार ग्राफ में क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बार. सो व्हाट इज अ बार? बार इज अ यूनिफॉर्म विड्थ. एक यूनिफॉर्म विड्थ होता है, ऐसा नहीं ऊपर का पोर्शन पतला और नीचे का पोर्शन मोटा, या फिर नीचे का पतला और ऊपर का मोटा, ऐसा कुछ नहीं होगा. इट वुड बी यूनिफॉर्म विड्थ का होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली like that can be drawn horizontally. मतलब हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे, और आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वर्टिकली. सो नाउ व्हाट हैपेंस, एंड ये जो रहते हैं, तो अगर आप हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर रहे हो या फिर वर्टिकली भी ड्रॉ कर रहे हो, either way in either of these representations, in between two, like दो ग्राफ्स के बीच, like दो बार के बीच, दो बार के बीच आपका इक्वल स्पेसिंग रहता है, इक्वल स्पेसिंग, ठीक है. और the length of the bar represents the number of this given number, like represents the given number basically, ठीक है. और जो लेंथ होता है ग्राफ बार का, लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर बार represents your represents the given number, ठीक है. जो भी नंबर, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी में या फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट का नंबर दिया गया है, वो आपका लाइक ये रिप्रेजेंटेशन होता है. लेंथ, लाइक बार का जितना भी लेंथ होगा उतना it would be representing the particular the number basically. Okay, so now, and this entire format, this entire representation in an xy graph, ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ये एक्स वाई ग्राफ में, ये पूरा जो मेथड होता है, दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, दिस इज बेसिकली आपका वही बार ग्राफ है, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पूरा चीज को. अभी इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम लोग एक बार को? फॉर एग्जाम्पल
नाउ लेट्स सी कि हम लोग इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं एक ग्राफ का, एक बार का। Rate of a bar graph, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर ग्राफ है, और ये ग्राफ में आपको दिया गया है यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन करोड़। और क्योंकि आपको इक्वल इंटरवल्स में बार को लाइक बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, और लाइक उसके बीच का जो भी स्पेसिंग रहता है वो इक्वल होता है, तो इन दैट केस इट्स वेरी नेचुरल कि जो हम लोग यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो भी हम लोग ट्राई करेंगे कि इक्वल इंटरवल्स में हो। ट्राई नहीं, वही करना पड़ता है, लाइक इक्वल इंटरवल्स में। इफ यू आर टेकिंग इट एज 10, देन द नेक्स्ट स्पेसिंग, लाइक नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा वो 20 होगा। अगर आप 15 ले रहे हो तो नेक्स्ट वाला 30 होगा, फिर उसके बाद 45 होगा। सिमिलर वे में इट मूव्स as you progress, ठीक है। 40, 50, 60 is there, then 70, and so on and so forth, ठीक है। अभी आपका क्योंकि ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है तो वो ईयर के रिस्पेक्ट में होगा, ईयर्स। तो यहाँ पे भी जो हम लोग लेंगे इंटरवल्स सिमिलर रहेंगे। फिर से वी आर टेकिंग 1950, ठीक है। फिर हम लोग ले रहे हैं 1960, ठीक है। 1950 से अगर 1959 तक लेते, फिर उसके बाद हम लोगों को लेना पड़ता अगेन 1969 तक। मतलब अगर 99 करके गैपिंग ले रहे हैं तो 9 ही मतलब करके मूव करना पड़ेगा एक्स ग्राफ में, एक एक्स वाला एक लाइन पे या फिर वाई वाले ग्राफ पे, ठीक है। सिमिलर वे में ये होगा आपका 1970s, दिस इज 80, this is 1990, 2000, okay, and so on. अभी आगे जितना आप इंक्रीज करना चाहोगे you can do it. So now फिर से कि यहाँ पे दिया गया कि 1950 में अराउंड आपका 30 था, ठीक है, 30 करोड़ होता है। सो दिस इज हाउ, वही जो हम लोगों ने थियोरी पोर्शन में पढ़ा कि बार का जो भी लेंथ रहता है that will represent your data, that will represent the number that is given, okay। ये जो बार आ गया, इनका जो लेंथ है, बार का लेंथ इतना तक आया, वो आपका 30 तक ही आया, 30 इन करोड़, okay? This is in crores. सिमिलर वे में 1960s में फिर से it was around 45, ठीक है, 45 somewhere in between यहाँ पे होगा। तो ये भी आपका इक्वल स्पेसिंग में होगा, समवेयर समथिंग लाइक दिस। सो ठीक है। नेक्स्ट 1970s में फिर से इट वाज अराउंड 35, सो दिस अराउंड ईयर। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, एक्सक्यूज दिस। So something like this. Similar way में 80s में it can go move forward as you wish it to. For example 40 फिर उसमें था, ठीक है। Then 1990s में फिर से it was around 30. 2000 में it was around 50. ठीक है। So basically यहाँ पे थोड़ा सा you can see कि थोड़ा सा
लाइक क्योंकि हम जस्ट ड्राइंग इट फ्री हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा सा लाइक डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है कि बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो ये जो गैपिंग रहता है ये इक्वल रहेगा। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि इतने ये 10 गैपिंग है, इसके बीच का फिर 10 है, फिर 10 है, सबके बीच में 10 10 है, इस तरफ भी 10 है। सो एक्स एक्सिस भी 10 यूनिट्स करके बढ़ रहा है। लाइक 1 यूनिट बेसिकली इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, y इज ऑल्सो सेम, y और x सेम इस पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी कैन राइट इट लाइक दिस इज वेल कि x एंड y इज बेसिकली 1 यूनिट 10 करके इंक्रीज हो रहा है। तो वी कैन राइट इट एज 1 यूनिट का जो लेंथ है ये आपका 10 करोड़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स द एंटायर फॉर्मेट ये जो y एक्सिस वाला है। सो दिस इज व्हाट इट्स हैपनिंग यहाँ पे 10 करोड़, मतलब each is 10, so and the unit was crore, in crores it was, right? Well, population wala part. So this is how it happens. I hope it's like mostly clear. लोगों अगर anyone has anything to add on you can do it. ठीक है, this is a very basic representation. Similar way में अगर इसको ही आप जैसे हम लोगों ने पढ़ा ये आपका वर्टिकल हो गया, करेक्ट? वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको अगर हॉराइजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन करना है तो सिमिलर वे में यू कैन डू इट इस तरफ से, लाइक इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो इक्वल इंटरवल्स में ही होगा बस, और x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन इफ यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड यू आर गेटिंग सम लाइक वहां पे एक सर्वे वो लोग कर रहे हैं अपने 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 प्रोडक्ट्स के। तो प्रोडक्ट्स जो रहेंगे इट कुड बी योर लाइक इन दिस पर्टिकुलर लाइन एसी टीवी रेफ्रिजरेटर मिक्सर ग्राइंडर वट एवर इट इज। एंड देन यहाँ पे हो सकता है कि इतना एक्सपेंस या फिर कितना वो हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, इट कुड बी कितना सेलिंग हो रहा है। तो ये भी आपका सिमिलर सिमिलर फंडा है, यहाँ पे भी इक्वल इंटरवल्स में होंगे, ये भी इक्वल इंटरवल्स में होंगे। नथिंग लाइक कुछ और नहीं है इसमें। सो नाउ टू अंडरस्टैंड बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी की बुक में थे ये इतने ही, मतलब इतना ही था। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ लिटिल बिट डिटेल, लाइक थोड़ा सा ही डिटेल जो कि टैली वाले मार्क्स पे आता है। कि टैली हम लोगों ने पढ़ा कि टैली इज बेसिकली यूनरी, यू कैन कॉल इट एज अ यूनरी न्यूमेरिकल, लाइक टैलिंग मार्क्स जो था वो आपका एक यूनरी न्यूमरल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स वी आर काउंटिंग द न्यूमेरिकल्स एज वेल एंड एज वेल एज वही जो हम लोगों ने पढ़ा कि 4 vertical lines. So one is represented as this one line, one vertical line, 2 as 2 vertical line, 3 as 3 vertical lines, 4 as 4 vertical lines, and when it comes to 5, तो ये होता है आपका 4 vertical lines and 1 diagonal lines. This is how it's represented as. और ये जो टैली का जो शीट रहता है, दिस द चार्ट बेसिकली, द टैली चार्ट और द टैली शीट, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी या फिर ऑकरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग the number of times a particular substance or a particular object is occurring, so it's also termed as frequency distribution क्योंकि it's related to occurrence. So now लाइक इन टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग जब हम लोग वो पढ़ रहे थे तो तब हम लोगों ने पढ़ा कि
क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है. ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर क्लियर. बट देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि डेटा हैंडलिंग कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. सो नाउ द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड in this data handling is first आपका in this particular steps is first is of course the purpose of this particular data. So the problem that is given to you, the problem or purpose, we have to identify it and we have to define it well. ये नहीं कि हम लोगों को फ्रूट्स का डेटा दिया गया है एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एंड लाइक और कुछ डेटा से मिक्स करके कुछ सम दिया गया है एंड we are unable, we are also considering fruits in it. Like for example, there is this huge market and there's vegetables, fruits and all of those things, and then we have to find out कि ये बताया गया है कि फिर से MSP के अंडर क्योंकि all of us know like उसके minimum support price के अंदर कौन कौन से vegetables are there and all of those things we have to take a tally sheet out of it, and then we are unable to understand and it shouldn't happen. Like proper purpose, like कौन सा problem है वो identify करना पड़ता है पहले. So next comes collection of that particular data in whichever method we can. So relevant data जो होता है relevance के हिसाब से relevant data we will be collecting. Then third is of course the presentation. तो presentation के लिए there are charts, there are graphs, there are different formats of presenting of that particular data, tally sheets. So collect करके फिर present करने पे क्या हो जाता है, it becomes easy, है ना, and it becomes meaningful as well and handling easy हो जाता है. So it's where the handling starts. Like collect करके फिर उसके बाद presentation के part से we start handling that particular data well. So now it could be in a simple table format or a tally format. Table format मतलब जो numbering वाला part हम लोगों ने देखा, फिर tally वाले format पे भी आ सकता है, tally marks के format में. Next is graphical representation is there. Graphs के format में जो भी हम लोग represent करते हैं, graphical representation. So in graphical representation of data, it's mostly visual representation. जो भी visually आप लोग represent कर रहे हो, it could be in bar chart, it could be histogram, it could be pie charts. ठीक है, representation जो भी हो रहा है, and it makes the analysis part, like जो भी analyze करना है हम लोगों को, क्योंकि जैसे pictograph we just now in NCERT class 6 it's mentioned from, it's just वहाँ पे वही है कि बस pictograph, bar graph और tables के format में इतना ही बताया गया है. तो basically ये क्या करता है, pictographs and all this makes analyzing a particular data easier, like analyzing part, and to understand it as well, to understand that particular thing quick कर देता है काम को, and greater impact, it also impacts it, greater impact रहता है. ठीक है, graphical representation का. And then there's another part is that is which is the most important part, which is analyzing that particular data. So the data undergoes some sort of, we can call it as क्या बोल सकते हैं, inspection, एक थोड़ा सा inspection sort of situation it arises to derive the usefulness of that particular data, usefulness and the necessary factor, like necessary कितना हो जाता है वो information वो analyze करते हैं यहाँ पे to take further action, to take further action. और यहाँ पे आपका वही it helps in this further action वाले criteria पे help करते हैं further action लेने के टाइम. और the last is आपका inference. Infer क्या कर सकते हैं यहाँ से,
इन्फर या कंक्लूड भी बोला जाता है, इफ यू आई थिंक ऑल ऑफ अस नो। इन्फर लाइक इन्फर या फिर कंक्लूड क्या कर सकते हैं, वही है कि सोल्यूशन को, सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम और टू आवर पर्पस स्टेटमेंट, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसको सोल्यूशन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, ये एनालिसिस पे बेस करके, बेस्ड ऑन एनालिसिस of that particular data. और बार ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। पिक्टोग्राफ में हम लोगों ने देख लिया, पिक्टोग्राफ में इट कुड बी any format of pictures and the and the object or the data that is given. Then there's another thing called line graph. तो line graph में ये ऐसा होता है, line graph, I'm just mentioning it. Line graph is this. A line graph is basically जो नाम है वही काम है बेसिकली, ठीक है। लाइन ग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ लाइन ऑन अ ग्राफ, ठीक है। एक लाइन के फॉर्मेट में जो भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में, दैट इज व्हाट इट इज, एंड इट अगेन रिप्रेजेंट्स द डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ट्रेंड्स या फिर डिफरेंट चेंजेस जो है, तो बेसिकली यहाँ पे चेंजेस और डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस और डिफरेंट ट्रेंड्स को एनालाइज करा जाता है, ये यूज होता है बेसिकली इसके लिए। एंड देन इफ यू रिमेम्बर प्लॉटिंग ऑफ एनीथिंग, एक प्लॉटिंग जैसे एक पर्टिकुलर शीट में अगर कुछ प्लॉट करना पड़ जाए, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है, इफ यू रिमेम्बर फिजिक्स में करते थे हम लोग और काफी टाइम, तो एक पर्टिकुलर डेटा को वी यूज्ड टू टेक इट एंड देन फिर से देयर वाज एंटायर एक पेंडुलम है, पेंडुलम का हम लोगों ने बहुत सारे डेटास लिए हैं एंड वी आर कंसीडरिंग कितना ग्रेविटी है। सो ग्रेविटी और हम लोगों ने ऑकरेंस को लिया, ऑकरेंस इन टर्म्स ऑफ डे, ठीक है। तो मंडे में एक कंसिडर किया, फिर ट्यूसडे में एक पेंडुलम का स्पीड कंसिडर किया। ये ग्रेविटी आपका स्पीड के ऊपर, लाइक जितना भी बार वो एक पेंडुलम जितना बार ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन का अगर हम लोगों ने एक डेटा निकाला, फिर से मंडे में, एंड दिस इज अगेन 10-20 वही सेम फ्रीक्वेंसी में सेम इस पे रखते हैं, ठीक है। 50 इज देयर। सो मंडे में ये 5 बार ऑसिलेट करा विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 सेकेंड्स का ही टाइम फ्रेम है, एवरी डे वी आर कंसिडरिंग 5 सेकेंड्स का ही टाइम फ्रेम, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ट्यूसडे में करा, इट वाज अराउंड सेम टाइम में कुछ हवा का इन्फ्लुएंस हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो ये 15 हो गया इसका ऑसिलेशन का स्पीड, ठीक है। देन वेडनेसडे में ये फिर से इंक्रीज हो गया आपका 20 में, फिर थर्सडे में कुछ हुआ, ये फिर से आपका डाउनग्रेड करके वो 18 में आ गया, फिर फ्राइडे में आपका वो हो गया 11 में आ गया, फिर दिस सैटरडे एंड संडे में इट बिकेम स्टैटिक एट 10 में आपका स्टैटिक रह गया, ठीक है। तो सिमिलर वे में ये जो आपने प्लॉटिंग करा है, ये आप ऑफ कोर्स यू कैन मार्क इट लाइक एक लाइन के फॉर्मेट से, अगर ये डॉट को मतलब लाइन को लेके एक एक लाइन यूज करके आप इन सबको मतलब इन सबको ज्वाइन कर दोगे, तो यू कैन सी कि ये एक पर्टिकुलर एक ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड एनालिसिस हो गया ना। मतलब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये इधर हुआ, फिर इधर, फिर यहाँ पे, देन यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, तुरंत ये देख के ही समझ आ जाएगा कि सैटरडे एंड संडे में सेम कंडीशंस की वजह से या फिर सेम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से सिमिलर ऑसिलेशन का वो था,
नंबर ऑफ टाइम्स लाइक ऑसिलेशन का जितना बार ऑसिलेट हुआ है वो सेम था। और सिमिलर वे में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इट वाज डिफरेंट, मंडे में डिफरेंट था, ट्यूसडे में डिफरेंट था, डिफरेंट मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेंड अपने एनालाइज कर लिया। तो जैसे मतलब चेंजेस हर एक मतलब वीक के हर एक दिन में हम लोगों ने चेंजेस एनालाइज कर लिया यहाँ पे। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ। सो नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है पाई चार्ट। सो पाई इज आप लोग सब every one of us know pie is a food, of course pie जो एप्पल पाई होता है और बहुत सारे होते हैं। सो पाई इज बेसिकली पाई को सोच लाइक सुनते ही हम लोगों को दिमाग में आता है कि खाना है, और इट्स राउंड शेप, समथिंग स्वीट एंड राउंड शेप। तो ऑफ कोर्स पाई चार्ट इज बेसिक इज अ सर्क्यूलर रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे अगेन आपका एक सर्क्यूलर ग्राफ है, फिर ये आपका सर्क्यूलर रिप्रेजेंटेशन मतलब सर्क्यूलर ग्राफ है। और यहाँ पे जैसे हम लोग सर्कल जब पढ़ रहे थे तब वी वर अंडरस्टैंडिंग देयर आर दिस सेक्टर्स एंड आर्क एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? तो आर्क वाले पार्ट पे नहीं जाने का जरूरत है, सेक्टर वाले पार्ट पे भी नहीं, पर वी नो दिस फैक्ट, know this for a fact that this can be divided into smaller sectors, right? बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं सर्कल को। सिमिलर वे में जब एक केक होता है या फिर एक पाई होता है, उसको भी काट काट के छोटे छोटे सेक्टर्स में यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एज वेल। सो इट्स द सेम थिंग। सो अभी क्या होता है, तो ये डिनोट करता है certain information it's denoting. So these small sectors will denote certain information, ठीक है, मतलब समझ आ रहा है सबको? ठीक है। हाँ, नाउ इज हाँ, तो अगर कुछ ऐसा है कि तो यहाँ पे वी कैन कंसिडर इट एज फिर से एक कंपनी है एप्पल, ठीक है। एक एप्पल एप्पल एक कंपनी है, जो भी जैसे कि आप sorry, नहीं ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, बस बोल देते हैं एप्पल एक कंपनी है। तो यहाँ पे आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्वार्टरली इन लोगों का Q1 पे इनका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस होगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सबको पता है कि कितना ज्यादा अच्छा हुआ उनका सेल वगैरह, मतलब कितना ज्यादा पैसा मिला, एंड कितना ज्यादा मतलब कितना लॉस हुआ, कौन से मंथ में लॉस हुआ उनका, ठीक है। लॉस मतलब कितना ज्यादा पैसा, कितना कम पैसा मिला फर्स्ट से, ऐसे, ठीक है। जनवरी में फिर से कि आपका 100 यूनिट फोन बिका है, ठीक है। फेब्रुवरी में 20 यूनिट्स, मार्च में आपका 50 यूनिट, अप्रैल में अगेन 15 यूनिट। योर साइकिल एंडिंग होता है तो 15 यूनिट, ठीक है। तो अभी जनवरी में ये अगर ऐसा एक सर्कल एकदम गोल वाला बना रहे, तो इन दैट केस अगर इसको हाफ ऐसे मतलब डॉटेड लाइन से वो कर देते थोड़ा सा, जब तक कि समझ आ जाए। नाउ दिस इज फिर से दिस इज 180, सो इफ दिस इज 90, सो ऐसा कुछ होगा इतना तक, ठीक है। इतना कुछ होगा कि ये 100, ठीक है। जनवरी वाला हो गया। अभी आपका 20 तो छोटू सा ही होगा, तो समवेयर हियर, तो ये आपका फेब्रुवरी का हो गया। देन फिर से जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
अभी आपका फिर आ गया 50 ना, 50, ये तो आपका अगर 20 चला गया यहाँ से, तो यहाँ से तो आपका फिर 1080 था, 60 बच रहा है, तो यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, यहाँ तक होगा आपका मार्च वाला। देन अगेन 15 तो और ही छोटा होगा, तो दिस इज 15, ओके, 15 मतलब अप्रैल। एंड ये सब आपका नेक्स्ट, ये तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर का कुछ निकला, ठीक है। सो नाउ ये आपका क्योंकि ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज, इफ दिस इज 100, दिस इज 20, 120, this is 50, 170, this is 15, 185, correct? 70, हाँ 185, तो सर्कल तो ऑफ कोर्स दिस इज 360, तो बाकी का तो रह जाएगा वो आपको, ये आपका अननोन अननोन पार्ट है, ठीक है, अननोन पार्ट है। तो ये वाले पार्ट का वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स ये चार्ट देख के ही, इफ इवन इफ वी डू नॉट हैव, मतलब बहुत बड़ा बड़ा अगर कुछ डेटा सेट है हमारे पास, तो पाई चार्ट से वी कैन अंडरस्टैंड। माई मोटिव ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर पाई चार्ट वाज बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक पाई चार्ट से तो जल्दी से ही देख के हम लोग को समझ आ जाएगा कि कौन से जोन में कितना ज्यादा एफिशिएंसी या कितना ज्यादा वेटेज है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि इसको देख के ही समझ आ जा रहा है कि जनवरी में वेटेज ज्यादा है, तो जनवरी में वेटेज ज्यादा है, तो जनवरी में प्रॉफिट हुआ है। सो नेक्स्ट आपको फरवरी और मार्च के बीच में, मार्च इज ऑफ कोर्स मार्च में ज्यादा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में इशू हुआ है, तो जो भी है, मार्च में 50 हुआ है, तो मार्च इज द नेक्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ इन दिस केस। देन ऑफ कोर्स इट्स फेब्रुअरी एंड देन अप्रैल, फेब्रुअरी एंड देन अप्रैल। सो बेसिकली पाई चार्ट इज अगेन इट्स अ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका 360 काइंड ऑफ 360 ग्रुप्स के बारे में, या फिर 360 यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यू कैन एब्सोल्युटली मार्क 360 यूनिट्स तक आप मार्क कर सकते हो पाई चार्ट में, ठीक है, यू कैन मार्क अकॉर्डिंगली। देन और एक होता है आपका स्कैटर्ड प्लॉट, स्कैटर्ड प्लॉट एक होता है, स्कैटर्ड प्लॉट, XCATTR, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज वही जो नाम है वही है, दैट इज इट। तो स्कैटर प्लॉट जो यहाँ पे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपका बेस्ट फिट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी, जैसे हम लोगों ने ये वाले यहाँ पे लाइन ग्राफ में वी सॉ कि एक प्रॉपर लाइन हम लोग खींच दिया, ठीक है, हम लोगों ने एक प्रॉपर लाइन, लाइक एक प्रॉपर लाइन नहीं, मतलब दो पॉइंट को, मतलब मंडे और ट्यूसडे को मिलाने के लिए वी ड्रू अ लाइन सेगमेंट, देन वेडनेसडे को मिलाने के लिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे का लाइक ट्रेंड एनालाइज करने के लिए वी अगेन ड्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। बट स्कैटर प्लॉट में एक ही लाइन होगा जो कि जो कि पहले पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक, लाइक फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आपको खींचना पड़ता है। एंड वो आपका वो लाइन, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो सब पॉइंट्स को क्रॉस करे या फिर सब पॉइंट्स को आपका इंक्लूड करे अपने अंदर, ओके। आई जस्ट ड्रॉ इट सो दैट इट्स बेटर, लाइक थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से लाइक समझ आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा एक ग्राफ है, और आपका यहाँ पे टाइम ऑफ वॉचिंग फोन पर वीक का एक एनालिसिस हुआ आवर्स के हिसाब से, ठीक है। एंड देन and this is around
अच्छा, तो दिस कुड बी वही सेम आपका 4 घंटा, फिर 8 इक्वल इंटरवल्स में, राइट? 12, then this 16, then this 20. Okay, now यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? Time of watching phone and okay, so यहाँ पे क्योंकि हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं तो we can consider marks here. So 20, 40, 60, 80, 100. ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स परसेंटेज। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं एक बार कि 3 घंटा जो यूज कर रहा है वो उसको अराउंड 70 समथिंग आया। देन अगेन समवेयर दिस 8 घंटे वाले को आया 60, 12 घंटे वाले को आया 40, दिस 6 आवर्स वाले को आया 50, 20 आवर्स जो फोन चलाता है उसको आया अराउंड 35। ठीक है, हाँ। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो तो पॉइंट है, आई एम वेरी स्केयर्ड टू ड्रॉ द लाइन बट देन आई विल ट्राई। जो भी, तो ये बेस्ट फिट लाइन, आपको ये बेस्ट फिट लाइन इज द की टर्मिनोलॉजी। मतलब एक बेस्ट ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट से लेके आपका एंड पॉइंट तक, कि एक एक बेस्ट फिट लाइन हो जो कि सब पॉइंट्स को इंक्लूड करे। इट्स नॉट नेसेसरी बट पॉइंट्स आसपास हो वो लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोग को समझ आ ही रहा है कि the points are scattered. Points are scattered. Correct. तो of course it's a तो ये पूरा ग्राफ जो आता है वो आपका एक स्कैटर्ड प्लॉट कहा जाता है, स्कैटर्ड प्लॉट। एंड इफ एनीवन रिमेम्बर्स वही फिजिक्स लैब में क्लास 12th में we used to do this we used to have this lens, convex and concave lens, and we used to take readings of those lenses. If anyone is from had physics, chemistry and all of those things in their 11th and 12th, so I am very sure that you will remember कि we used to have these lenses and we used to take readings कि कितना ज्यादा कौन से एंगल में डाल के कितना ज्यादा वो पॉइंट मीट कर रहा है, वो कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ दोस टू पिन्स। 2 पिन होते थे, उनका कन्वर्जेंस पॉइंट होता था, and we used to take concave and convex lenses and we used to measure those points, and वो points जब आते थे those points used to vary according to the width of that particular lens. जितना मोटा या जितना पतला, convex में अलग आता था, concave में अलग आता था, तो concave lens में अलग आता था। तो we used to kind of take those readings, और वो जो graph representation होते थे वो experiment का ये स्कैटर प्लॉट वगैरह आपकी क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में इट्स नॉट मेंशन्ड, वेरी बेसिक सा, लाइक बहुत ही बेसिक चीजें ही मेंशन थे, पर आई थॉट कि ये सारे भी बेसिक्स ही है तो एक बार बता ही देते हैं। सो दिस इज अबाउट इट। if anyone has anything else to add on, you can definitely do, and or else we are done for today. I'll see you in the next class. Thank you guys for attending the class. Okay, there was very less questions, of course, today because data handling in class, according to class 6, it's a very easy chapter. So, yeah. Thank you so much. Bye.